what makes Hire the most reliable option in the single phase hybrid inverter? आई थिंक इस पे मैं हायर और बाहम दोनों की टीम को क्रेडिट दूंगा. वी हैड अ प्रोडक्ट विच वर वी ऑपरेटिंग इन द यूरोप. सो हमने पाकिस्तान के लिए डेडिकेटेड प्रोडक्ट जो है वो पहले डेवलप की है, उसको टेस्ट किया है 6 मंथ्स. Then I remember कि जब बाहम के पास ये प्रोडक्ट आया था और हम लोग जब हमारी टेक्निकल टीम इसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह करी थी तो इट ऑलमोस्ट टुक अस अराउंड 6 to 8 months, क्योंकि साल के शुरू में ये बात मार्केट में सर्कुलेट हो रही थी कि हायर एनर्जी इज़ लॉन्चिंग इन पाकिस्तान, हायर एनर्जी इज़ लॉन्चिंग इन पाकिस्तान. Hire is responsible for the after sales support. We already have the after sales centers. ये एक अच्छा क्लेम भी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ब्रांड्स आती हैं लेकिन कस्टमर को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दे कैन नॉट सी द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दैट ब्रांड. वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स हायर एनर्जी. Living AI. Oh, nice. One common myth about the solar industry that you want to bust out. That is that there is no future of renewable in Pakistan. या इतनी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, अच्छे भी बुरे भी. किस तरह अपनी पोजीशन बनाएगा, क्या वैल्यू ऐड करेगा स्पेसिफिकली टू द पाकिस्तानी मार्केट और किस तरीके से स्टैंड आउट कर पाएगा? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल हायर सिर्फ उन्हीं चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करता है जिसके अंदर वो वैल्यू ऐड कर सकता है. Assalamu alaikum everyone and welcome to the very first episode of Tech Talks powered by Baham, the leading solar company in Pakistan and your gateway to conversations on technology, innovation and future of energy systems in Pakistan. I'm your host Abir and today I'm so glad that in our very first episode we have a very special guest and a leading name in the solar industry, Mr. Shiraz Tahir Khan. Mr. Shiraz Tahir Khan brings over 12 years of experience into the segment of solar energy and electric vehicles and telecom. Not only that, he's an electrical engineer from NUST and holds an EMBA degree from LUMS, which gives him a special edge in the solar market. He has led key portfolios for global and regional companies and he is now serving as the country director for Higher Energy Pakistan. Yes, you heard it right, Higher Energy Pakistan. And now he is dealing with all the higher energy portfolio and drive its expansion in the renewable energy segment of Pakistan. Shiraz, thank you so much for joining us in today's episode. How are you? Abir, alhamdulillah, I'm fine. And thank you so much for having me in this show. Actually, it's our honor to have you on our very first episode. आपको कैसा लग रहा है हमारी? मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी अरसे से ये अपनी पॉडकास्ट सीरीज शुरू करना चाह रहे थे बट ये उसी वक्त मुमकिन होना था जब आपने हमारा पहला गेस्ट बनना था. तो आपको कैसा लग रहा है? आई रियली फील वेरी ऑनर्ड. देखिए, हमारी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के एजुकेशनल कन्वर्सेशंस ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए. स्टिल हमारी इंडस्ट्री के अंदर अ लॉट ऑफ पीपल्स who are not educated and not aware of the technologies and everything. So I think this is a good platform for the especially awareness. बिल्कुल ऐसा ही है. मुझे एक चीज़ बताइएगा, मतलब हायर ऑलरेडी एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर हायर की कोई प्रोडक्ट ना हो. देन व्हाई रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाई हायर डिसाइडेड टू एंटर इनटू दिस सैचुरेटेड मार्केट? So good question. This was the first question where I was giving the interview to the higher energy team. So मैंने भी यही पहला question पूछा. One thing is that it's our, being a Fortune 500 company, it's our responsibility to contribute in the renewable energy and the clean environment. And other segment, I think other reason why Hire jumped into the renewable energy segment, because our brand strategy for next 10 years is to build an ecosystem. And Hire has already built an ecosystem in which all the devices are IoT based. Devices can communicate to each other. So why we have entered in the renewable energy? Because solar has also come in the category of the appliances, because 80% of the appliances are in the houses. 80% of appliances belong to the higher. I mean, we are operating in that segment. So we feel to energize or to the make efficient energy use, we have to be at the top. उन्हीं अप्लाइंसेस का ही लोड हमने कंट्रोल करना है जो हमारी अप्लाइंसेस हैं. सो पावर हाउस भी हायर का ही होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड
कि हमें इसमें आना चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको ये एज भी मिल गया है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हर घर में हायर तो मौजूद है ही। तो वो जो हम कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के, वो आपको एज ऑलरेडी मिल मैं चुका है। आपको एक बल्कि फोरकास्ट भी कर रहा हूँ, बिकॉज सी इट्स आवर वैल्यू एडिशन in inverter. Since last 12 years I have seen inverter already has achieved efficiency of 98%, so there is a very less margin in the term of efficiency if I talk about the inverter. So अब जितना भी काम फ्यूचर में होना है वो दो चीज़ें पे होगा, एक होगा एआई के ऊपर और एक होगा डाटा जो कि यूजर्स का डाटा है. सो हायर हैज़ 1 बिलियन यूजर्स globally. So we have the user data. We know their needs, their demands, their energy consumption. So ये जो ऑटोमेशन IoT एंड AI का कम्बिनेशन है, इसके लिए सबसे जो रगेड प्रोडक्ट होगी आई थिंक वो हायर की होगी, एंड यू विल सी इन द फ्यूचर. अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आपके पास ऑलरेडी, मतलब ये तो एक एज है कि यू ऑलरेडी हैव द यूजर डेटा। सो क्या आपको लगा था कि पाकिस्तानी मार्केट में कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए हायर एनर्जी का पाकिस्तान में लॉन्च करना बहुत ज़रूरी है? I think yes, higher has contribution almost in market share. I talk about 70% market share in the AC. If I talk about, so हमें सबसे ज़्यादा जो नीड पहली फील हुई एंड वी डिस्क्लोज और अनवील्ड दैट सेगमेंट वो था रेजिडेंशियल, क्योंकि वी हैव अ brand loyalty, brand awareness, everything for the hire already in Pakistan. So that's why we choose to launch our residential products. रेजिडेंशियल सेगमेंट की ही बात की जाए, और आई एम वेरी मच ग्लैड दैट यू हैव ऑलरेडी जंप्ड इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट। See, luckily, Hire has a 360-degree portfolio for the renewable energy in Pakistan. So we have launched products for every sector. We have launched for the residential sector, we have launched the battery as well as the hybrid inverters. For agriculture sector, we have launched the VFT. For CNI sector, we have launched the industrial best solutions. So Hire has the complete 360-degree product range for the renewable energy. और अगर मैं उसी से आगे बढ़कर बात करूँ स्पेसिफिकली अबाउट योर हाइब्रिड इन्वर्टर्स, यू हैव कोलैबोरेटेड विद बाहम फॉर स्पेसिफिकली फॉर योर सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर्स। Why Baham? There are so many companies and so many people who are eager to take higher. I think so. So why Baham? See, in Pakistan, the only success factor is choose the right partner. So yes, a lot of people contacted for the hire. So we evaluated the strengths of each partner, and then we found that for this sector, on the metrics, the dealership metrics, Baham is the best partner for this sector. And see, we have the complete ownership of the product. हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन हमारी है और आफ्टर सेल्स भी हमारी है, लेकिन टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रोडक्ट वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स. सो आई थिंक यस, बाहम हैज़ दैट कैपेबिलिटी एंड इट हैज़ कंट्री वाइड रीच. बिल्कुल ऐसा ही है। इसी से अगर मैं इस कड़ी को आगे मिलाती चलूँ, आपने बात की थी, अभी हम रेजिडेंशियल सिस्टम्स की बात कर रहे थे और अभी हम लोग सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करें, क्योंकि बाहम के साथ जो आपकी कोलैबोरेशन है दैट इज़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर्स। व्हाट मेक्स हायर्स प्रोडक्ट यूनिक? मार्केट में बहुत से सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, कौन से वो इश्यूज हैं, क्योंकि यू आर एन इंजीनियर योरसेल्फ एंड यू नो द टेक्निकलिटीज बेटर देन मी। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट रेंजेस इससे पहले आई हैं मार्केट में और अभी भी बहुत सी प्रोडक्ट मौजूद है सिंगल फेज की कैटेगरी में। व्हाट मेक्स हायर द मोस्ट रिलायबल ऑप्शन इन द सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर कैटेगरी? आई थिंक इस पे मैं हायर और बाहम दोनों की टीम को क्रेडिट दूंगा. वी हैड अ प्रोडक्ट विच वर वी ऑपरेटिंग इन द यूरोप. सो हमने पाकिस्तान के लिए डेडिकेटेड प्रोडक्ट जो है वो पहले डेवलप की है, उसको टेस्ट किया है 6 मंथ्स विद बाहम टीम. और हमने आइडेंटिफाई पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर जहाँ की ग्रिड स्टेबल नहीं है उसके अकॉर्डिंगली. अच्छा, ये पाकिस्तान में वेल नोन कंपनीज के साथ भी ये हुआ है कि दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट एंड देन दे नो दैट दिस इज़ अ इशू. लेकिन हमने इस चीज़ को बिल्कुल रखा है कि हायर इज़ अ ब्रांड वैल्यू. तो हम जो प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं वो उस इन्वायरमेंट, उस ग्रिड कंडीशंस के साथ कंपेटेबल हो. और इसके अंदर बाहम की टीम ने बहुत रगेड टेस्टिंग की है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स विद आवर टीम. सो लकीली वी हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान.
बिल्कुल ऐसा ही है। इवन आई रिमेम्बर कि जब बाहम के पास ये प्रोडक्ट आया था और हम लोग जब हमारी टेक्निकल टीम इसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह करी थी, तो इट ऑलमोस्ट टुक अस अराउंड 6 to 8 months, क्योंकि साल के शुरू में ये बात मार्केट में सर्कुलेट हो रही थी कि हायर एनर्जी इज़ लॉन्चिंग इन पाकिस्तान, हायर एनर्जी इज़ लॉन्चिंग इन पाकिस्तान। वो कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन अच्छा है कि देर आए दुरुस्त आए। एंड आई एम वेरी मच ग्लैड कि वो चीज़ें जिस तरह आप बता रहे हैं कि योर टेक्निकल टीम हैज़ वर्कड ऑन द इश्यूज बिफोर हैंड रादर देन कि लॉन्चिंग के बाद वो इश्यूज सामने हैं, आप लोगों ने उसको पहले ही केटर किया है, विच आई बिलीव इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, स्पेसिफिकली फॉर द रेजिडेंशियल कस्टमर्स एज वेल, जिनके पास उतना एक्सेस नहीं होता। मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट की आफ्टर सेल्स है, या इवन जो कस्टमर के कोई अगर इश्यूज आ जाते हैं, उसको कौन केटर करेगा, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, उसका क्या कोई मैकेनिज्म आपने पाकिस्तान में अगर बनाया हो? एग्जैक्टली देखिए, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आफ्टर सेल्स सपोर्ट, वी ऑलरेडी हैव द आफ्टर सेल्स सेंटर्स, सो वी हैव डेडिकेटेड वन आफ्टर सेल्स सेंटर राइट नाउ इन लाहौर। लेकिन ये है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने सारे आफ्टर सेल्स नेटवर्क के साथ। सो हमारे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और स्टॉक मेंटेन करना। बाकी इसकी जो मार्केटिंग है, ब्रांड बिल्डिंग है और आफ्टर सेल्स है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर। वी टू कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू आफ्टर सेल्स, एंड टू एंड हम इस प्रोडक्ट को ओन करते हैं। अम, ये एक अच्छा क्लेम भी है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ब्रांड्स आती हैं, लेकिन कस्टमर को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दे कैन नॉट सी द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दैट ब्रांड, विच आई बिलीव हायर के पास एक ये बहुत अच्छा एडवांटेज भी है, और एक बहुत बहुत अच्छी कस्टमर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है टू गेट अ ब्रांड ऑफ टू गेट अ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द ब्रांड दैट दे आर बाइंग फॉर देयर सोलर सेटअप। अभी आई थिंक हायर टू 23 years टू रीच दिस पॉइंट, और वो अभी अप्लाइंसेस में नंबर 1 पाकिस्तान में भी है और ग्लोबली। तो उसकी रीज़न यही है कि दे हैव बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स। बिल्कुल ऐसा ही, और यही वजह है कि हम मार्केट में देख रहे हैं कि हायर के प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी भी उसी तरीके से आ रही है। अभी फॉर्मल लॉन्च नहीं हुआ और हायर ने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं आ गया हायर, छा गया हायर, हम जहाँ देख रहे हैं हम हायर की बात सुन रहे हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? इज इट सिमिलर? Alhamdulillah, honestly, when I was talking even with my team, so I was very hopeful for the residential sector because Hire has a reputation and the brand awareness in residential sectors. But believe me, we have done wonders in irrigation as well as in the industrial sector right now. So yes, even the before the launch, formal launch of the high energy, हमने रिमार्केबल अचीवमेंट पाकिस्तान की मार्केट में क्रैक कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि फॉर्मल लॉन्च इज ऑल्सो हैपनिंग वेरी वेरी सून, एंड यू ऑल ऑफ यू नीड टू स्टे ट्यून फॉर दैट। हमने बात की कि आपने जिस तरह खुद बताया कि हायर के जो प्रोडक्ट आप लेकर आए, यू 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 वर्कड नॉट ओनली ऑन द R&D ऑफ द प्रोडक्ट, एंड ऑब्वियसली जो भी उसको पाकिस्तान के लिए कंपैटिबल बनाना था, बट यू ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली प्लान एंड चोज द बेस्ट पार्टनर फॉर एवरी रेंज। हाउ डू यू सी द कोलैबोरेशन विद बाहम इन फ्यूचर? I think it's not for the single phase inverter because hybrid inverter has a very diverse product range. We are working on it. Inshallah, we will launch 3-phase hybrid inverter very soon. So उसमें भी हमारी collaboration जो है वो बाहम के साथ ही है. So basically, we have given the complete segment of hybrid inverters, whether it's single phase or it's 3-phase. This portfolio is with the Baham. यानी मेरा ख्याल है कि बाहम के जितने भी हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर पोर्टफोलियो और आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर पोर्टफोलियो है, दे मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ नया हायर की तरफ से आता ही रहेगा। मुझे आपने जिस तरह बताया कि आप लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि इसको मज़ीद प्रोडक्ट रेंज बाहम के साथ भी लॉन्च की जाए। इन जनरल व्हाट इज़ द प्लान ऑफ हायर एनर्जी इन पाकिस्तान? व्हाट डू यू सी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years और मे बी 5 years? I think I can claim it easily. In 5 years, Hire will be the leading inverter in Pakistan. So I hope so. Not only the inverter series, but all of the other categories yeah, of yeah, leads the exactly. charts as well. Um
can we expect more products launching real soon, or maybe end of 2026, start of 2026 में कुछ No, हमें no, no. मिलेंगी? You see, in every month we will have a product upgrade. I have the plan for 1 year, so you will see in every month we will unveil some product. तो मुझे एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही थी जब मैंने सुना कि हायर आ रहा है, और एक ऐसी मार्केट में आ रहा है जो इतनी सेचुरेटेड है। हम सुबह उठते हैं और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो आपको क्या लगता है, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, इसको कंटिन्यू कैसे किया जाएगा इस एक्सेप्टेबिलिटी को, और उस प्रोडक्ट रेंज को, जो इतनी वाइड प्रोडक्ट रेंज अभी भी माशाल्लाह यू हैव लॉन्च ऑलमोस्ट इन एवरी सेगमेंट, बट आप इसको मजीद जो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, उसको सस्टेन किस तरह किया जाएगा, उस स्टैंडर्ड्स को किस तरह से सस्टेन किया जाएगा? I think this acceptability is due to the trust of the customers. And one other thing is, yes, it's a saturated market, but still, मेरे एक टीचर थे जो उन्होंने एक बात मुझे बताई थी बचपन से ही कि इफ़ यू ट्रैवल इन द इकोनॉमी क्लास तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इफ़ यू मैनेज टू गेट इन द नेक्स्ट जो कंटेनर है वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको रश थोड़ा सा कम नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ी सी और आप स्ट्रगल करते हैं और आप फर्स्ट क्लास में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो पूरी मार्केट ही खाली है, ठीक है। सो येस, फॉर द यू कैन सी मैनी ऑफ द कंपेटिटर्स इन द डिफरेंट सेगमेंट, they have created their brand value and the services, and now they are leading that sector. So we are very hopeful, because Hire has a brand reputation. We have to maintain that reputation, और after sales और ये trust जो है इसकी base पे I'm very hopeful कि we will penetrate in this saturated market. So now 2025 is ending, and with the year 2026 approaching to us, हमारे पास अगर हम 2026 या 2030 की बात करें, अगले 5 साल के विजन की, what is the plan of Higher Energy? What's the bigger agenda? I think Hire's agenda is the leading the smart energy solution. Then one line only, leading the smart energy solution, and then we are expecting our exponential growth in every sector because we have customized the product according to each and every segment. And the best thing, we have choose the best partner for every application. I guess that's great, and that's the smart approach. Higher का अपना भी विजन जो है, और हायर का जो अपना स्लोगन है, दैट इज प्रोवाइडिंग द स्मार्टर एनर्जी सॉल्यूशंस. सो how higher thinks that higher products are providing smarter and efficient solution as compared to others? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके जितने भी इन्वर्टर्स हैं उसमें डुअल आउटपुट की एक नीड होती है कि आपकी बैटरी ड्रेन ना हो जाए। लेकिन व्हेन यू आर ऑन आवर इकोसिस्टम, आपका एसी सिग्नल भेजेगा या इन्वर्टर सिग्नल भेजेगा एसी को कि मेरी बैटरी कम हो गई है, तो आप अपना टेम्परेचर कम कर दें। तो दिस इज बेसिकली हाउ डिवाइसेस विल कम्युनिकेट टू ईच अदर। दिस इज द वैल्यू एडिशन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। यानी ये जो आपने भी एक बात की कि इट्स अ वेरी स्मार्ट, मतलब आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ा, द डिवाइस इज The गोइंग device will communicate with each other. all right. Any feature that you think is specifically designed for Pakistani climate and usage condition? Yeah, one thing is that we have increased its input voltage range for the grid stability. There is a feature named grid stability operation. उसके लिए हमने पाकिस्तान के लिए उसकी इनपुट रेंज जो है ग्रिड की वो इंक्रीज की है। और आपको क्यों लगा ये करने की जरूरत है? बिकॉज वी हैव हमने सैम्पलिंग की काफ़ी जगह पे, तो पाकिस्तान की ग्रिड कंडीशंस जो है वो उसके ऊपर ओवर वोल्टेज में भी और अंडर वोल्टेज के अंदर भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। फ्लक्चुएशन जी, काफी ज्यादा काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी। एग्जैक्टली। और एंड यू क्लेम कि आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू केटर दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन। एग्जैक्टली, मैम ने जो अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर साउथ एशिया एंड स्पेशली फॉर द पाकिस्तान। यानी पाकिस्तानियों को पता लग जाना चाहिए कि इफ दे वांट to have a stress free solar system installed at their home, Hire is the smart choice. Hire के बारे में तो हमने काफ़ी बात की है, और आपने काफ़ी अच्छा बता भी दिया कि Hire का प्लान क्या है और Hire के पास अभी क्या मौजूद है। अपने बारे में बताएं, आपको क्यों लगा इतने पोर्टफोलियो के बाद कि यू हैव टू बी विद Hire लीडिंग द कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ Hire एनर्जी इन पाकिस्तान? Where did this idea come from? I think
honestly speaking, when I read the vision, because all the big companies, they have the vision, the goal, and it's not on the book only. So when I read their plan for the next 5 years, so really, and other thing was that I think Hire is the only company who can bring the local manufacturing in Pakistan. So So is it a plan? yeah, ये see, हमारे हमारे पहली एपिसोड पे मुझे लगता है एक चीज रिवील भी हो रही है कि वी आर सून गोइंग टू सी अ लोकल असेंबलिंग इन yeah, exactly. पाकिस्तान. Our plan is first to build the market, Yeah. and then when market will be there, so yes, we have the plan for local manufacturing, because you see always Hire believes in the local assembly and local manufacturing. So almost our 90% of the products are being locally manufactured. What's the benefit of that? आई थिंक उसमें जो सबसे बड़ी Customers के चीज़ लिए है हाँ. कस्टमर के लिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये है, आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगी, और प्राइस रिड्यूस होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि देयर इज बेनिफिट्स फॉर टैक्सेस एंड ड्यूटीज इफ यू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट लोकली। एंड आई एम सो ग्लैड कि अभी भी हम अगर हायर की प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज़ फॉलोइंग इन अ वेरी वेरी इन अ गुड प्राइस रेंज फॉर द कस्टमर एज वेल. क्योंकि अक्सर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, उनके साथ बहुत बड़े बड़े प्राइस टैग्स भी आते हैं. तो ये किसका विजन था कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, लेकिन ऐसी लॉन्च करनी है कि उसकी प्राइस भी पाकिस्तानियों के लिए वो अफोर्डेबिलिटी का इशू ना बने? देखें, ये तो डेफिनेटली हमने अपने पार्टनर्स के साथ भी इसको कंसल्ट किया, और लोकल मार्केट की फीडबैक हमने दी कि इस प्राइस के ऊपर बिल्कुल एक अच्छे फीचर्स के साथ एक अच्छी प्राइस के ऊपर दिस इज़ द एक्सेप्टेबल। पर हायर का जितना नाम है, आई वुड से हायर चाहता तो बड़ी अच्छी और मतलब अच्छी खासा लंबा प्राइस टैग देकर भी काफ़ी काफ़ी कुछ कैश कर सकता था. सो फिर भी कस्टमर्स का सोचना क्यों? Exactly, because if you talk about the appliances, तो उसकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, वो कॉमन पर्सन्स की रीच के अंदर है। तो हमारा भी ये था कि हम जो मासेस हैं, जो मिडिल क्लास है, वो इसको अफोर्ड कर सके, हम ऐसी प्राइसेस रखें, क्योंकि हमारे जो फीचर्स थे IP66 जो लेटेस्ट थे, सो इसको हम और भी ओवर प्राइस कर सकते थे, बट हमारा विजन ये था कि नहीं, इसको हम मिडिल क्लास तक भी एक्सेसिबल बनाएं इस प्रोडक्ट को। और मेरा ख़्याल ये है कि वो उससे उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो जो हायर की एक एडॉप्टेबिलिटी बनी हुई है कस्टमर में, उनको कम से कम अब प्राइस सुन के ये नहीं होगा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. दैट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट अप्रोच. आप मुझे प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत अच्छा गाइड कर चुके हैं और आपने अपने विजन के बारे में भी बताया. एज अ पर्सन आपको क्या लगता है, अब कहा जाता है क्योंकि पिछले कुछ अरसा सोलर इंडस्ट्री में इतनी चीज़ें आई हैं, इतनी चीज़ें आई हैं कि अब कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. क्या आपका भी ये ख्याल है या आपका ख्याल इससे मुख्तलिफ है? नो, आई डोंट थिंक सो। मैं अभी, हमने टीम एक्सपेंशन करनी थी, तो आई गो थ्रू मैनी रिज्यूमे, मैनी कैंडिडेट, सो एवरीवन हैज़, और मैंने जब देखा और वो चाइनीज़ भी हैरान हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एवरी स्विचिंग 1 ईयर चल रही है। वाई सो? दिस इज़ बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग। all the entry level or the mid career level people, they have a lot of opportunities. So I think ये एक मिथ है कि सोलर का ख़त्म हो जाएगा, कैरियर नहीं है। आप देखें, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है। जिन लोगों ने 5 साल पहले सोलर लगाया था, उनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आपकी न्यू प्रोडक्ट्स आएंगी, न्यू इनोवेशन। देखें, इंसान की जो इमेजिनेशन है वो अनलिमिटेड है। सो यू हैव टू डू समथिंग इनोवेटिव एवरी टाइम। तो आपको नई प्रोडक्ट्स भी आएंगी, और इसी तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी कंप्लीट होती जाएगी। और एक जो बहुत बड़ा सोलर या रिन्यूएबल के लिए मैं कहूँगा पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान में ईवी, आप हर जगह देखेंगे ईवी ईवी ईवी। सो वो ईवी को पावर कहाँ से मिलेगी? आपकी डिमांड बढ़ जाएगी पावर की, तो वो भी रिन्यूएबल ने कैटर करनी है। तो आई एम वेरी होपफुल कि 2055 तक देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। डिमांड के साथ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप मुझे बताएं, क्योंकि बहुत से यंग बच्चे हैं हमारे पाकिस्तान में. आप देखें, देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं. एंड ऑब्वियसली बेशक बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है या कुछ लोगों ने अपनी वो स्विचिंग भी कर ली है ऑलरेडी फील्ड की. तो आप मुझे बताइएगा कि हाउ डू व्हाट डू यू वांट टू से टू द न्यूअर जनरेशन who who sees solar segment as a career? Is it a good career to be adopted? या
बस कर जाएं, रुक जाएं? नो, आई थिंक आई हैव रेड मैकेंजी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट थी जो लास्ट वीक पब्लिश हुई है, उसके अंदर भी अगर आप देखें कि अगले 10 ईयर्स के डिकेड के अंदर जो प्रॉमिसिंग फील्ड्स हैं जिसके अंदर ग्रोथ होनी है, दैट इज़ बैटरी एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सो आई थिंक मेरी, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दीज फेजेस, सो हम भी उस एरिया से गुजर के आए हैं, ठीक है. अच्छा, मुझे एक चीज़ जो जेन जी का मसला है वो डिफरेंट है, बिकॉज हम ये कहते थे कि अगर हमारे कंसर्न रिलेटेड अगर जॉब है जिसमें जिस तरह से रिन्यूएबल की, सो हम पहली जॉब के ऊपर सैलरी और इन चीज़ों का नहीं करते थे ऑनेस्टली. इवन अगर आई टॉक, मैं अगर आपको पहली सैलरी बताऊं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है. लेकिन देखें, वो एक्सपीरियंस हमें यहाँ तक लिया है, ठीक है. तो देयर इज़ नो शॉर्टकट. मेरा जो एडवाइस है ना वो यंग इंजीनियर्स के लिए ये है कि शॉर्टकट कोई नहीं है. आप जो भी देखें इंडस्ट्री के अंदर किसी पोजीशन पे बैठा है तो उसने कोई 12 साल की स्ट्रगल करके वो आया है, ठीक है. सो आपको अगर कोई भी प्रॉमिसिंग रोल स्टार्ट जहाँ पे आप सीख सकें, सो यू शुड ज्वाइन दैट. और मैं आपको विद द नंबर्स बता सकता हूँ कि 2055 तक जो है ना, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड, रिन्यूएबल एनर्जी. आई होप सो. और जिस तरह आपने कहा कि शॉर्टकट्स नहीं है, हम जितने भी सोलर इंडस्ट्री में लीडिंग नाम सुनते हैं, वी सी ह्यूज स्ट्रगल बिहाइंड दैट. तो कई दफ़ा हम मुझे लगता है कि हम लोग क्योंकि सिर्फ उस टाइम की पोजीशन पे जज कर रहे होते हैं, तो हम एग्जैक्टली. कहीं ना कहीं जो है मार खा जाते हैं. बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ अरसे में, पाकिस्तानी जितनी भी, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मेजरली ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी जो सोलर इंडस्ट्री को इतना बूम मिला या कुछ इस तरीके से. तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में, जिस तरह हायर का तो प्लान है एक लोकल असेंबली यूनिट की तरफ जाने के लिए, इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी? अगर होंगी तो हाउ हाउ टू हायर सी इटसेल्फ अमंग ऑल? देखें, पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली वी आर वर्किंग ऑन दैट. आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह से पीपीए मॉडल्स हैं. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये हमारे बैंक्स का भी है कि इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वो फाइनेंसिंग ऑप्शन. देखिए, टेक्निकल क्वेश्चन जो था कि सोलर 25 साल उसकी लाइफ है, अभी उससे हम बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जो 1985 में पहला जापान के अंदर सोलर प्लांट लगा था वो 25 साल पूरे कर चुका है. इट्स प्रूवन टेक्नोलॉजी. तो टेक्निकली नो वन कैन क्वेश्चन कि यार इसकी इतनी लाइफ है. और दूसरा, पाकिस्तान के एनर्जी टैरिफ के हिसाब से इट्स फिजिबल. द ओनली चैलेंज जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी आ रहा है, हम अभी बेस में भी देख रहे हैं कि बिकॉज मैनी कंपनीज दे कंसिडर दैट एनर्जी इज़ नॉट देयर कोर बिजनेस. आई टॉक अबाउट नेस्ले, दे आर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. एनर्जी उनका कोर बिजनेस नहीं है. दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द एनर्जी. सो दैट्स व्हाई द प्राइवेट फाइनेंसर, द बैंक, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका रोल जो है ना वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है कि इस रोल को वो टेक ओवर करें. लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अभी हमारा चाइना के अंदर हायर एनर्जी का जो है वो ईपीसी विंग भी है, ठीक है. और वो गीगावाट आवर के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट सपोर्ट ये काफ़ी ज़्यादा है. तो आई थिंक यस. और ये फ्यूचर के अंदर आई थिंक कि ये जो बैटरी एनर्जी की अडॉप्टेशन जिस तरह से जिससे जा रही है, तो गवर्नमेंट को भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इसके लिए कोई मॉडलिंग देनी पड़ेगी फाइनेंशियल. अच्छा, गवर्नमेंट की भी रिसेंट कुछ स्कीम्स आई थी, दैट वाज फॉर द रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जिससे काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया. आपको क्या लगता है कि इस तरह की मज़ीद स्कीम इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी ज़रूरत है, ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा देखें, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की भी अगर बात करें, उनकी जो कॉस्ट होती है उसकी एनर्जी कॉस्ट होती है जो सबसे ज़्यादा उनके कॉस्टिंग एक चीज़ आ रही होती है. तो आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स लाने की ज़रूरत है फॉर द सोलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू गिव देम ईज एंड टू गिव ईज टू द प्रोवाइडर्स एज वेल? एग्जैक्टली. अगर आप कंपेयर करें लेबर कॉस्ट इन चाइना, लेबर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है. लेकिन उनकी प्रोडक्ट क्यों competitive है इंटरनेशनली? क्योंकि उनकी एनर्जी कॉस्ट, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या वो पाकिस्तान में हाई है. येस, दे नीड टू इंसेंटिवाइज द इंडस्ट्री. उनको उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस. ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है. और ऑनेस्टली इवन व्हेन आई टॉक अबाउट द हायर, दे हैव प्लान टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान. सो दैट्स वाई, बिकॉज हायर अप्लाइंसेस पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी करता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी
क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अभी ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ से एक्सपोर्ट बिजनेस भी पाकिस्तान से हो सकता है। इट्स पॉसिबल। यानी गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे और उसी तरीके के इंसेंटिव या उसी तरीके का सपोर्ट एक्सटेंड करे जो उसने रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर जी कस्टमर जी को किया है, तो वी कैन सी अ वेरी मच ब्लूम इन द इंडस्ट्रियल सेगमेंट, सोलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेगमेंट। बिल्कुल ठीक है। सो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जस्ट यू कैन जस्ट हैव योर टी एंड देन वी मूव विद आवर रैपिड फायर राउंड इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। हमने अभी बात की हमारे पूरे हायर के पोर्टफोलियो के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, पाकिस्तानी मार्केट के बारे में, लेकिन एक बहुत अहम सवाल जो सबका ही सवाल है, जो सोलर में बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं उनका भी, और एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, देर आर टू टाइप ऑफ चैलेंजेस। एक वो हैं जो मार्केट के हैं, एक वो हैं जो हायर के हैं। मैं पहले आपको मार्केट के चैलेंजेस बता देता हूँ। एक तो पाकिस्तान के अंदर ओवर सप्लाई का इशू है, क्योंकि जब आपकी इंपोर्ट बंद हुई थी 2021 के अंदर, तो 2022 और 2023 के अंदर काफ़ी डिमांड जो प्रीवियस ईयर की थी वो भी इंपोर्ट हुई उसी ईयर के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा पैनल्स इंपोर्ट हुए। उस नंबर को देख के अगले साल जो फोरकास्ट की लोगों ने, बजाय इसके कि 10 गीगावाट के 17 गीगावाट आवर जो है वो पैनल्स इंपोर्ट हुए। इन माय एनालिसिस पाकिस्तान का जो रियल मार्केट साइज था वो 10 गीगावाट आवर था, लेकिन वो 17 गीगावाट आवर पैनल्स इंपोर्ट हो गए। तो एक काफ़ी बड़ा स्टॉक जो है ओवर सप्लाई ऑफ द पैनल स्पेशली वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक प्राइस वॉर शुरू हो गई है। अच्छा, एक तो ये चैलेंज है फॉर द मार्केट। अच्छा, दूसरा जो मार्केट का चैलेंज है वो ये है कि अभी कुछ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है जो कि पाकिस्तान में लोकली भी बन रही हैं, ठीक है, और दे आर नॉट रिकमेंडेड कि उनके ऊपर आप अपना एसिस चलाएं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से हर फील्ड के अंदर आप नीम हकीम कहते हैं कि होते हैं, तो सोलर में भी काफ़ी हैं, तो वो उस प्रोडक्ट की काफ़ी एडवोकेसी और वो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, उसकी कॉस्ट 10 टाइम की कम है जो आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये है मार्केट का चैलेंज। अब आ जाए हायर का चैलेंज। देखिए, हायर का चैलेंज इज़ द ओनली स्टेटस को, एंड आई थिंक पाकिस्तान के अंदर एक स्टेटस को थी कि ओनली दिस ब्रांड कैन डू दिस, ओनली दिस ब्रांड कैन डू दिस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हायर हैज़ चैलेंज द स्टेटस को, और हायर ने ये बताया कि नहीं, हायर कैन आल्सो डू दैट। तो हमारा चैलेंज सिर्फ अभी स्टेटस को है, उसके अलावा प्रोडक्ट R&D वी आर पार, और इंशाल्लाह वी विल आल्सो गेट दिस चैलेंज। अच्छा, एक जो अभी बहुत ज़्यादा recent advancement specifically with the advancement in AI and technology, सबके पास बहुत ज़्यादा ओवर इंफॉर्मेशन आ गई है ना। जिस तरह हमारे मुल्क में बड़ा आम है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने, डॉक्टर हमें दवाई लिख के देता है, हम घर आके गूगल से पूछते हैं कि डॉक्टर ने हमें सही दवाई दी है या नहीं दी। इसी तरीके से जब हम अभी आपने एक बात की थी कि क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो बहुत से लोग सोलर में क्या करते हैं कि दे टेक, इवन रेजिडेंशियल कस्टमर्स या इंडस्ट्रियल की भी बात की जाए, दे टेक कोटेशंस फ्रॉम सो मेनी अदर डिफरेंट वेंडर्स, और फिर वो कहीं ना कहीं प्राइस वार पे जाकर वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, या बहुत ज़्यादा ओवर इंफॉर्मेशन या इस तरह की मार्केट में जो मिस इंटरप्रिटेशन है प्रोडक्ट की, उसकी वजह से भी बहुत मुझे लगता है कि बहुत सी ब्रांड्स फेल हो जाती हैं टू मेक देयर नेम और टू टू गेज बिग प्रोजेक्ट्स। एग्जैक्टली। अब अगर इसको करें ना थोड़ा सा एनालाइज, कि पाकिस्तान के अंदर बाइंग डिसीजन कैसे मेक होते हैं, ठीक है, बिकॉज हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन। अगर मैं बात करूं कि एक 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में से पूछते हैं कि लगा हुआ है सोलर, ठीक है, और अगर वो लगा हुआ है, उनका सही चल रहा है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी है, अगर वो कहेंगे हमारा लगा हुआ है सही चल रहा है, तो बेसिकली क्योंकि उनके फर्स्ट सर्कल में वो होते हैं, तो उस ट्रस्ट की बेस पे वो ब्रांड और वो चीज़ें लगा लेते हैं, ठीक है। दूसरा, बिल्कुल जो जिनका IQ थोड़ा सा ज़्यादा है वो फिर गूगल पे जाते हैं, वो देखते हैं बेस्ट ब्रांड पाकिस्तान, वो देखते हैं फिर SEO के थ्रू जिनकी हाँ हुई हुई SEO, तो उसकी बेस के ऊपर वो खुद भी रिसर्च करते हैं। सो आई थिंक it's not only the product, it's the complete, I think, from the product manufacturing to after sales, पूरा एक साइकिल है। देखें, हर वो कंपनी जो प्रोडक्ट इनोवेशन से लेके सेल्स, आफ्टर सेल्स तक पूरे साइकिल को मैनेज अच्छा करेगी, उस प्रोडक्ट की जो है वो रीसेलिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। क्योंकि देखें, एक दफ़ा प्रोडक्ट बेचना इज़ नॉट एन इशू, आपको रिपीटेटिव ऑर्डर जनरेट करना फ्रॉम द सेम कस्टमर,
This is a success for the sales. मैं चाहती हूँ कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हुआ कि बहुत से लोग सिर्फ प्राइस के चक्कर में बहुत सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाते हैं। घर में अप्लाइंसेस तो हमने ऑब्वियसली लगाई होती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब हम लोग सोलर की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे बचाने के चक्कर में हम लोकल कुछ ऐसे ब्रांड्स की तरफ चले जाते हैं जो कि ऑनेस्टली ब्रांड्स भी नहीं है। उससे क्या नुकसान हो सकता है लोगों को? मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में भी थोड़ा-सा अवेयर करें लोगों को, ताकि वो एजुकेट हों कि किस वजह से क्वालिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये जो हम लोग एक और चीज़ जिसके बारे में मैं चाहती हूँ आप बात करें, कि जो ये हम कहते हैं ना IP21, IP66, ये क्या प्रोटेक्शंस और ये क्यों ज़रूरी है प्रोडक्ट में चेक करना? अच्छा, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। आज से कोई 2013 के अंदर मैंने अपना एक हमारा घर था मियाँ वाली में, वहाँ पे मैंने सोलर लगाया और वो बहुत एक्सपेंसिव लगा था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे लो ग्रेड बी ग्रेड पैनल्स भी थे। उस वक्त तो कोई ये सर्टिफिकेशन और क्राइटेरिया ही नहीं था कि आप बी ग्रेड इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो सारे ऑलमोस्ट आपके बी ग्रेड पैनल्स इंपोर्ट होते थे। तो मुझे घर से भी डांट पड़ी कि आपने महंगा सोलर लगवा लिया है, ठीक है। लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ। मैं अभी थोड़ी देर पहले गया वहाँ पे, तो इरिगेशन, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, तो ज़्यादातर वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम्स और ये ट्यूबवेल्स सोलराइजेशन के ऊपर, जो आज से 4-5 साल पहले जिन्होंने सोलराइजेशन करवाई भी थी और बी ग्रेड पैनल्स, उनका वो सिस्टम काम नहीं कर रहा एफिशिएंटली। और नाउ दे आर ओनली आस्किंग, वी नीड ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट्स लिटरली। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि देखें, अब आपको समझ 4-5 साल बाद आई है कि वो बी ग्रेड प्रोडक्ट चलेगी 3-4 साल, ठीक है। सो गुड थिंग इज़ दैट कि जो मार्केट काफ़ी है वो डिप्लॉयमेंट के बाद भी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की बेस पे अब गुड प्रोडक्ट्स की तरफ आ रही हैं। अच्छा, दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा IP21 और IP65, देखें पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डस्टी है और यहाँ पे मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपकी मॉइस्चर या डस्ट की वजह से पीसीबी के अंदर या जो सर्किटरी के अंदर है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट या कोई भी फॉल्ट आ सकता है। तो रगेड प्रोटेक्शन जो है वो IP65 है, लेकिन हमारा जो इन्वर्टर वो IP66 है, इवन कि दैट इज़ मोर बेटर प्रोटेक्शन। तो उसके लिए ये है कि आपका वो डस्ट प्रूफ भी है और आपका वाटर प्रूफ भी है। तो उसकी लॉन्जेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो वो जस्टिफाई IP65 या IP66 ही करता है जो प्रोजेक्ट लाइफ की है। बिल्कुल ठीक है। आई गेस दिस दिस वाज वेरी मच इंसाइटफुल। मेरा ख्याल है कि हमने ना बड़ी सीरियस सीरियस बातें कर ली है, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा फन एलिमेंट की ज़रूरत है। एंड फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू मूव टू आवर वेरी स्पेशल सेगमेंट, दैट इज़ द रैपिड फायर राउंड। शराज साहब, तेजी तेजी से सवाल करूंगी, पहली चीज़ जो दिमाग में आए, अनफिल्टर्ड, वेरी ओके। रॉ, you have to give an answer. ओके। And I hope it will go well. We'll start with easy. One word that describes higher energy. लिविंग AI। Oh, nice. What do you think that's the most funniest thing about the solar industry of Pakistan? Funniest thing. फनीएस्ट थिंग आई थिंक, कौन सी चीज आपको लगती है कि भाई ये क्या है सोलर इंडस्ट्री में पाकिस्तान की, दैट नीड्स टू बी चेंज, यू कैन से? आई थिंक मुझे जो सबसे फ़नी चीज़ लगती है सोलर इंडस्ट्री की वो ये है कि एग्जीबिशंस जो होती हैं, B2B कॉन्फ्रेंसेस, तो वो यूजुअली उसका पर्पस डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, जब हम उन पे जाते थे तो सुबह-सुबह हमें कस्टमर्स की कॉल आती थी कि आज क्या प्राइस है पैनल की। जब उनको बताते थे वो कहते थे कल तो एक्सपो पे ये प्राइस दे रहे थे आप। क्योंकि ये B2B होती हैं कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन एक्सपोज़ का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट, और वी वर सरप्राइज़ कि हर बंदा वहाँ पे पहुँच जाता था। एक्चुअली हमारे पास एंटरटेनमेंट के इतने मौके नहीं है ना, तो हमें लगता है एग्ज़ैक्ट कि जो चल रहा है हम उस पर जाएंगे। करेक्ट। The future of solar energy in Pakistan in one word. वेरी प्रॉमिसिंग। Very promising. Okay, if higher energy was a person, what would be the personality of higher energy? इंटेलिजेंट। That's very smart. That's very smart. What is one thing that you wish that your competitors stop doing? बहुत हो गया, अब आप नहीं चाहते कि वो मजीद करें. आई थिंक नेगेटिव मार्केटिंग। Oh, yeah, negative mark. As a marketeer myself, I wish that too. Uh, One common myth about the solar industry that you want to bust out. दैट इज़ दैट देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल इन पाकिस्तान। Yeah.
3 things that people should keep in mind while making their solar purchase. It's for the customers. Yeah, I think the brand value, the after sales network, and the company from which they are buying. So 2026 is the year of dash. What fill in the blank, please. Hybrid inverters. Hybrid inverters, that too of higher energy only, please, and that too distributed by Baham only. ये disclaimer देना बड़ा जरूरी था मेरे लिए. सिंपल सा आखिरी सवाल, हम पाकिस्तानियों का फेवरेट, चाय या कॉफी? I think chai. So with that, we'll take a break and we'll let our guests enjoy their tea because Pakistani serves the best tea. It is acclaimed globally now. Thank you so much, Rasa, for joining us and giving us the deeper insight of the solar industry and the higher's vision of energy segment in Pakistan. मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट लोगों को हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड व्हाट हायर इज कमिंग अप विद, क्योंकि लोगों को जो कंफ्यूजन है ना कि हायर वाकई ही रिन्यूएबल एनर्जी में आ गया या नहीं, तो हमने एक सबूत बिठा दिया हमारे सामने, द कंट्री डायरेक्टर हिमसेल्फ, दैट हायर इज नाउ ऑफिशियली in the renewable energy segment of Pakistan and Hire is here to stay for long. जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वी हैव एन इकोसिस्टम जिसके अंदर हमारे IoT बेस्ड डिवाइसेस हैं. सो इन IoT यू कैन टॉक टू द डिवाइसेस एंड डिवाइसेस कैन टॉक टू ईच अदर. सो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट बिग थिंग तो वो है IoT एंड AI. सो इफ़ यू हैव दैट इकोसिस्टम, सो आई थिंक नो वन कैन डू बेटर देन दिस जॉब बाय हायर. सो ये है कि हमारे लिए ये सबसे बेस्ट जॉब ये हायर ही कर सकता है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इकोसिस्टम, और हम उस इकोसिस्टम के अंदर डिवाइसेस को भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे और हम एनर्जी एफिशिएंट उनका यूज़ जो है वो कर पाएंगे यूजिंग AI and IoT. To our viewers and listeners, this was all for the very first episode of Tech Talks. Don't forget to follow, subscribe us, and stay tuned for more conversations that explore the future of innovation, energy, and technology in Pakistan. With that, we are going to say goodbye to all the viewers. Stay tuned. Allah Hafiz.